So very good morning, all the participants. Today, let us try to understand some of the provisions of this compromise arrangement and amalgamation. So sometimes they put a case study on this. So let us make this section interactive. So the first thing is, who can propose the scheme of compromise or arrangement? Who can propose? Whether a single shareholder can propose? हाँ जी भाई, इफ दे आस्क यू ए क्वेश्चन, देखो मुझे भी उतना ही पता जितना आपको पता है। आप ये बताइए, एक सिंगल शेयर होल्डर है, वो कॉम्प्रोमाइज की स्कीम ला सकता है या नहीं ला सकता? यस और नो? नो सर। नो। तो अगर नहीं ला सकता, योर आंसर इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये कि कितने मिनिमम होने चाहिए? कुछ तो मिनिमम होंगे ना। तो एक तो हमें आंसर ढूंढना है इसका। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और क्रेडिटर्स हु कैन प्रपोज द स्कीम। भाई वो बेसिक बेसिक से सवाल पूछता है, हमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया, पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं। तो सेक्शन 230 सबसेक्शन 1, where a compromise or arrangement is proposed between a company and its creditors or any class of them, or between a company and its members or any class of them। इतना तो क्लियर हो गया कि क्रेडिटर्स मींस प्लूरल, ठीक है, और एनी क्लास ऑफ देम दे कैन ब्रिंग ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ठीक है। सिमिलरली, members or any class of them they may bring a scheme। ठीक। The tribunal may, on the application of the company or of any creditor or member of the company, or in the case of a company which is being bound up of the liquidator, ठीक है, तो creditors, any class of creditors, members, any class of members, liquidator, ठीक है, appointed under this act or under the IBC as the case may be, order a meeting of the creditors or class of creditors or of the members or class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner as the tribunal directs। ठीक है। ये लोग पहुंच जाते हैं ट्रिब्यूनल के पास एक स्कीम लेकर के कि जी वी आर एग्रीएबल टू गेट समथिंग लेस देन व्हाट इज ड्यू टू अस। ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ठीक है। सो दे प्रपोज द स्कीम टू द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में ऑर्डर ए मीटिंग। ठीक है। द ट्रिब्यूनल में लिखा है, मे का मतलब ये है कि दे ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर ए मीटिंग, ट्रिब्यूनल मे नॉट ऑर्डर ए मीटिंग। तो ट्रिब्यूनल विल थिंक, ट्रिब्यूनल विल मेक हिज ओपिनियन whether any such meeting is required। So if any such meeting is required, they will order for calling of the meeting। ठीक है। Or of the members or class of members as the case may be to be called, held and conducted in such manner। ठीक है, as the tribunal directs। For the purpose of this subsection, arrangement includes a reorganization of the company's share capital by the consolidation of shares of different classes। ठीक है। अरेंजमेंट में क्या है? अरेंजमेंट इंक्लूड्स रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, of the company's share capital by the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into shares of different classes or by both of those methods। ठीक है। कंसोलिडेशन हो सकता है, सब डिविजन हो सकता है। The company or any other person by whom an application is made under subsection 1 shall disclose to the tribunal by affidavit। एक एफिडेविट देगा। ये क्या एफिडेविट देगा? आज हम दो चीजें कोशिश करेंगे करने की, एक तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और एक करेंगे वाइंडिंग अप। और अगर फिर टाइम बचेगा तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। कम से कम आप कंपनीज एक्ट में इतना तो कर ही जाइए, एंड देयर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इस पर केस स्टडी आ जाती है। ठीक है, अगर आएगी तो। The company or any other person by whom an application is made under subsection 1 shall disclose, एक affidavit देना है क्या? All material facts relating to the company, such as the latest financial position of the company, the latest auditor's report on the accounts of the company, and the pendency of any investigation or proceeding against the company। ठीक। Reduction of share capital of the company, if any, included in the compromise or arrangement, any scheme of corporate debt restructuring consented to बाई नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू। देखो, एक आ गया कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीडीआर में आ गया। तो सीडीआर में क्वेश्चन पूछ लेता है कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 75%। नॉट लेस, देखो दोनों में फर्क है, एक तो होता है एक्सीडिंग 75%, कई जगह हमारे आईबीसी में लिखा है मोर देन 75, लिखा ना इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वगैरह। तो अगर मोर देन 75 लिखा है तो मतलब 75 इज नॉट इंक्लूडेड। यहां क्या लिखा है? नॉट लेस देन 75।
नॉट लेस देन 75 मतलब 75 भी हो सकता है और उससे ज्यादा, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर वो कुछ पूछता है क्वेश्चन। अब इसमें इफ दे गिव यू ऑप्शन 75 और मोर, है ना, 75%, नॉट लेस देन 75%, तो नॉट लेस देन 75% हमें करना ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, ठीक है, इंक्लूडिंग एक क्रेडिट, ये और ये 75% किसके लिए वैलिड है? डेट बस। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, ठीक है। एक क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। अब आप देखो, अगर आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपको ये प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये डिस्क्लोजर खुल गया। क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन द क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर CAA1, ठीक है। तो CAA1 आ जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज क्लैरिफाइड दैट स्कीम ऑफ CDS as referred to in clause C of subclause it shall mean a scheme that restructures or varies the debt obligations of a company towards its creditors। ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद safeguards for the protection of other secured and unsecured creditors, report by the auditor that the fund requirements of the company after the CDS as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimates provided to them by the board। ठीक है, उसके बाद में ऐसा नहीं कि उसके बाद में भी लिक्विडिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इट शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स। भाई देखो, कुछ कंपनी में प्रॉब्लम है तभी तो ये स्कीम आ रही है ना, बट वो IBC में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई आपस में ही अरेंजमेंट हो जाए, तो इसलिए वो बाद में तो लिक्विड हो जाएगी ना। ये है बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू देम बाय द बोर्ड, where the company proposes to adopt the CDS guidelines specified by the Reserve Bank of India, a statement to that effect, and a valuation report in respect of the shares and the property and all assets, tangible and intangible, movable and immovable of the company by a registered valuer। ठीक है, where a meeting is proposed to be called in pursuance of the order of a tribunal under subsection 1, a notice of such meeting shall be sent to all the creditors, ठीक है, or class of creditors and to all the members or class of members and the debenture holders of the company individually at the address registered with the company, which shall be accompanied by a statement disclosing the details of the compromise or arrangement, a copy of the valuation report if any, and explaining their effect on creditors, key managerial personnel, promoters and non-promoter members, and the debenture holders, and the effect of the compromise or arrangement on any material interests of the directors of the company or the debenture trustees and such other matters as may be prescribed। ठीक है, अब एज में भी प्रेस्क्राइब पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहां पर ये रूल खुल जाएगा इसका। ये रूल है नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो नोटिस ऑफ मीटिंग में क्या है? ये नोटिस ऑफ मीटिंग आपका फॉर्म नंबर CAA2 है। नोटिस कौन भेजेगा? नोटिस शैल बी सेंट बाय दी, ये खुल रहा है ना आपका नोटिस ऑफ मीटिंग वाला, हाँ जी। है ना? हाँ, द नोटिस शैल बी सेंट। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि पुरानी स्क्रीन खुल रही हो, आई जस्ट कंफर्म, इसीलिए, और कोई बात नहीं। द नोटिस शैल बी सेंट बाय द चेयरपर्सन अपॉइंटेड फॉर द मीटिंग और इफ द ट्रिब्यूनल सो डायरेक्ट्स बाय द कंपनी और इट्स लिक्विडेटर और एनी अदर पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो चेयरपर्सन अपॉइंट होगा, ये चेयरपर्सन कंपनी का चेयरपर्सन नहीं है, दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल फॉर द मीटिंग, ठीक है। और इफ द ट्रिब्यूनल सो डायरेक्ट्स by the company or its liquidator or any other person as the tribunal may direct by registered post or speed post or by courier or by email or by hand delivery or any other mode as directed by the tribunal to their last known address at least 1 month before the date fixed for the meeting। ठीक है, तो ये टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, 1 month बिफोर द मीटिंग। इसी तरह से सवाल पूछ लेता छोटे छोटे। और कोरियर भी है इसमें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 month कोरियर। It is hereby clarified that the service of meeting shall be deemed to have been effected in case of delivery by post at the expiration of 48 hours after the letter containing the same is posted। ठीक है, मतलब जब पोस्ट किया 48 आवर्स के बाद मान लिया जाएगा कि मिल गया, क्योंकि क्या है, वो ये कह रहा है कि 1 month देना है आप। ठीक है, नोटिस शैल बी सेंट लिखा ना, तो सेंट का मतलब, बट 48 आवर्स के बाद हम 30 days मान लेंगे, एटलीस्ट 1 month मान लेंगे। The notice of the meeting to the creditors and the members shall be accompanied by a copy of the scheme of compromise or arrangement if such details are not already included in the said scheme।
Details of the order of the tribunal directing the calling, convening, and conducting of the meeting. Date of the order, date, time, and venue of the meeting. Details of the company, including SIN number और GLN number, permanent account number, name of the company. ये सारी चीजें आपको देनी है, ठीक है. Details of change of name, registered office, and objects of the company during the last 5 years. Name of the stock exchanges where security of the company are listed. Details of the capital structure, name of the promoters and directors along with their addresses. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है, इट रिलेट्स टू मोर देन वन कंपनी. So then, the fact and details of any relationship subsisting between such companies who are parties to such scheme of compromise or arrangement, including holding, subsidiary, or of associate companies. The date of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors, including the name of the directors who voted in favor of the resolution, who voted against the resolution, and who did not vote or participate in such resolution. तो ये सारी चीजें आपको देनी. Explanatory statement. Disclosing details of the scheme of compromise or arrangement, including parties involved in such compromise or arrangement. In case of amalgamation or merger, appointed date, effective date, share exchange ratio, and other consideration. Summary of valuation report, including basis of valuation, details of capital. ये सारी चीजें आपको देनी. Details about the effect of the compromise arrangement. ठीक है, KMP डायरेक्टर, इन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा. Effect on material interest of directors, KMP and debenture trustees. Term interest क्या है? Interest extends beyond an interest in the shares of the company and is with reference to the proposed scheme of compromise or arrangement. Valuation report shall be made by a registered valuer and till the registration of persons report shall be made by an independent merchant banker, ठीक है, who is registered with SEBI or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of 10 years. ठीक. Investigation or proceedings, if any, proceeding against the company. Details of the availability of the following documents for obtaining extract from or for making or obtaining copies of or for inspection by the members and creditors. Details of approvals from regulatory or other government authorities. Statement to the effect that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either in person or by proxies. ठीक, चलिए, ये भी हो गया हमारा, रूल भी हो गया. अब हम दोबारा चलते हैं अपने उस पर. प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक तो सारे मेंबर्स या जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, इनको भेजना है इंडिविजुअली. उसके बाद में it shall be placed on the website of the company if any, and in case of a listed company these documents shall be sent to the SEBI where the securities of the companies are listed for placing on their website and shall also be published in newspapers in such manner as may be prescribed. ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी देना. न्यूज़पेपर में कैसे देना है वो आपका रूल के अंदर दे रखा है. ठीक है, ये नोटिस है, फॉर्म CAA2 में है, और इट हैज टू बी गिवन इन एटलीस्ट वन इंग्लिश न्यूज़पेपर and in at least one vernacular newspaper having wide circulation in the state in which the registered office of the company is situated. ठीक, provided that where separate meetings of classes of creditors or members are to be held, a joint advertisement for such meetings may be given. ठीक है, चलिए. Provided further that where the notice for the meeting is also issued by way of an advertisement, it shall indicate the time within which copies of the compromise or arrangement shall be made available to the concerned persons free of charge from the registered office of the company. तो ये तो अच्छा. उसके बाद में नोटिस. Notice under subsection 3 shall provide that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting, ठीक है, either themselves or through proxies or by postal ballot, जो सिंपल प्रोसीजर रहता है, within 1 month from the date of receipt of such notice. ठीक, provided that any objection to the compromise or arrangement shall be made only by persons. ये इंपॉर्टेंट है. जो स्कीम को ऑब्जेक्शन कौन कर सकते हैं? ओनली बाय पर्संस होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग. और है ये इंपॉर्टेंट है ना. तो इस पर सवाल पूछ लेता है कि ऑब्जेक्शन कौन रेज कर सकता है.
by persons holding not less than 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than 5% of the total outstanding debt. ठीक. A notice under subsection 3 along with all the documents in such form as may be prescribed, तो इसके लिए रूल्स पे जाना होगा, shall also be sent to the central government, इनकम इन सबको भी नोटिस जाएगा. ठीक है. और इनको क्या करना है, दे हैव टू रेज द ऑब्जेक्शन, दे हैव टू गिव द रिप्रेजेंटेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस. ठीक है. अदरवाइज मान लिया जाएगा कि दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो रिप्रेजेंटेशंस टू मेक ऑन द प्रपोजल्स. Where at a meeting held in persons of subsection 1, majority of persons representing 3/4 in value of the creditors. ठीक है. तो यहां पर भी कितना है, यहां पर भी 3/4 इन वैल्यू. वहां पर कितना था, नॉट लेस देन 75%. यहां बोलता है 3/4 इन वैल्यू और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स. ठीक है. एग्री टू द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट एंड इफ सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल. ठीक है. तो 3/4 इन वैल्यू शुड एग्री और इट शुड बी सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल, देन इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी. ठीक है. ऑब्जेक्शन के बारे में हमने देख लिया, नॉट लेस देन 10% या नॉट लेस देन 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट. An order made by the tribunal under subsection 6 shall provide for all or any of the following matters. ठीक है. Where the compromise or arrangement provides for conversion of preference shares into equity shares. ठीक है. अगर ऐसी कोई स्कीम है कि जिसमें कह रहे हैं भाई प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स shall be given an option to either obtain arrears of dividend in cash or accept equity shares equal to the value of the dividend payable. ठीक है. तो इनको दोनों ऑप्शन देंगे, या तो आप कैश में अपना डिविडेंड ले लो जो बाकी है, या फिर इक्विटी शेयर्स ले लो. ठीक है. द प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स इफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट, इट शैल बी गिवन इफेक्ट टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48. ठीक है. अगर वेरिएशन हो रही है शेयर होल्डर्स के राइट में, तो उसमें क्या होगा, आपको जाना है फिर सेक्शन 48 पर. अब सेक्शन 48 क्या बोलता है, सेक्शन 48 पर अगर यहाँ क्लिक करोगे तो सेक्शन 48 खुल जाएगा. सेक्शन 48 वही है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी. ठीक. तो वेरिड हो सकते हैं विद द कंसेंट इन राइटिंग बाय मींस ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास और बाय मींस ऑफ ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट ए मीटिंग. ठीक. चलिए. If the compromise or arrangement is agreed to by the creditors under subsection 6, any proceedings pending before BFR established under SICA shall abate. Such other matters including exit offer to dissenting shareholders if any, as are in the opinion of the tribunal necessary to effectively implement. ठीक है. तो उसमें एग्जिट ऑफर भी दे देते हैं जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, क्योंकि नॉट लेस देन 10% में ऑब्जेक्ट. ठीक है ना भाई, उनको क्या एग्जिट ऑफर दे देंगे. Provided that no compromise arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment, if any, proposed, ये जो होगा, it shall be in conformity with the accounting standards. The order of the tribunal shall be filed with the registrar by the company within a period of 30 days of the receipt of the order. ठीक. स्टैट्यूटरी ऑडिटर ना सर, हाँ जी. स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपनी का। ऑडिटर में स्टैट्यूटरी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. हाँ यस सर। 9 नंबर, द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ ए मीटिंग. इसके ऊपर सवाल जरूर पूछता है. द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स वेयर सच क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैविंग एटलीस्ट 90% वैल्यू एग्री एंड कंफर्म बाय वे ऑफ एफिडेविट टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, ये जो मीटिंग है ना क्रेडिटर्स की या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की, अगर एटलीस्ट 90% दे एग्री एंड कंफर्म, तो फिर उस केस में मीटिंग नहीं भी बुला सकता. द टर्मिनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ ए मीटिंग. इसमें कितनी परसेंटेज है, 90%. तो 90%, 75%, 5%, 10%, इतना हमें याद जरूर रखना है. 10% क्या है, शेयर होल्डर्स हु माइट ऑब्जेक्ट. 5% क्या है, राइटर्स, डेटर्स है ना, क्रेडिटर्स जिनकी डेट वैल्यू नॉट एक्सीडिंग नॉट बिलो 5% दे कैन ऑब्जेक्ट. और 75%, 75% आपको ये जो है, अगर ये 75% में क्या था, एक तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में 75% की कॉन्सेप्ट आती है. ठीक है. और दूसरा कहाँ आती है 75% की,
सेक्शन 48 में बोलते हैं 3 नॉट लेस देन 3। बिल्कुल। और वो अगर क्रेडिटर्स एग्री करते हैं या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैविंग एटलीस्ट 90%, इस पे सवाल जरूर पूछता है वो, एक सवाल तो ये होता है। ठीक है, टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। और अगर कोई बाईबैक है तो बाईबैक आपका सेक्शन 68 के हिसाब से होगा। ठीक है, ये सेक्शन 68 खुल जाएगा आपका कि बाईबैक अगर होना है तो फ्री रिजर्व्स में से होना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए। एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज टेक ऑफर शैल बी एज पर दी सेबी रेगुलेशंस। एन एग्रीव्ड पार्टी may make an application to the tribunal in the event of any grievances with respect to the takeover offer of the companies other than listed companies। ठीक है, तो अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो उसमें अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई एग्रीव्ड पार्टी को, तो फिर उसके लिए ये यहाँ पर रूल अगर आपको मिल जाएगा, ये अगर एज में प्रेस्क्राइब पर देखें तो यहाँ पर आपको रूल मिल जाएगा। तो नोटिस में ही यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए आपको प्रोविजन दिया हुआ है। ये हो ही गया। चलिए, for the removal of doubts, it is hereby declared that the provisions of Section 66 shall not apply to the reduction of share capital effected in pursuance of the order of the tribunal। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 230 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 231। अगर 230 में से सवाल पूछेगा ना, एक तो 90% वाला सवाल जरूर पूछता है, क्रेडिटर्स वाला। वो तो इनका पेट क्वेश्चन है, वो तो जरूर आपको ध्यान में रखना है। 231 क्या बोलता है? वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 230 sanctioning a scheme of compromise or arrangement in respect of a company, it shall have power to supervise the implementation of the compromise or arrangement and may at the time of making such order or at any time thereafter give such directions and so it may, if the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanctioned under section 230 cannot be implemented satisfactorily or without modifications and the company is unable to pay its debts as per the scheme, it may make an order for winding up of the company। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? अगर उसको लगता है कि इसके बाद भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर वो क्या कहते हैं कि भाई वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे देगा। सेक्शन 230 में भी इसका रेफरेंस आता है। सेक्शन 230 में क्या कहता है? सेक्शन 230 में कहता है कि भाई उसके बाद में लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए इस कॉम्प्रोमाइजर्स अरेंजमेंट के बाद, यानी इसके बाद भी पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि लाते ही तभी है जब लिक्विडिटी क्रंच होता है कंपनी में। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल सो फॉर एज मे बी आल्सो अप्लाई टू कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑर्डर हैज बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सैंक्शनिंग ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, एक बार सेक्शन 230 पर दोबारा चलते हैं। तो सेक्शन 230 में वो जो 75% वाली क्लॉज है उसको दोबारा देख लेते हैं, जिसमें वो लिक्विडिटी पोजीशन की बात करता है। ये आपका रूल्स में मिलेगा।
कह रहा था ना कि लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन करेंगे। उसमें एक एफिडेविट देना होता है कि भाई इसके बाद में लिक्विडिटी पोजीशन मेंटेन रहेगी। स्टार्टिंग में करता था एकदम। ये सर टू वाला पॉइंट बोल रहा था वो। हम्म। टू वाले पॉइंट में कोई एफिडेविट बोल रहा था, द कंपनी आने का सेल डिस्ट्रीब्यूटिव और मटेरियल। ये यहां पर है, रिपोर्ट बाय द ऑडिटर दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द सीडीएस एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू देम बाय द बोर्ड। ठीक, यही है। चलिए। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये हमने कर ही लिया 231। अब 232 देख लेते हैं एक बार। मर्जर एंड एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है। अब मर्जर एंड एमलगमेशन, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 230 फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज्ड बिटवीन ए कंपनी एंड एनी सच पर्सन्स एज आर मेंशन्ड इन दैट स्कीम। ठीक है। ये मर्जर एंड एमल, पहले क्या था? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यहाँ क्या है? मर्जर एंड एमलगमेशन। That the compromise or arrangement has been proposed for the purposes of or in connection with a scheme for the reconstruction of the company or companies involving merger or amalgamation of any two or more companies। ठीक है। ये जो स्कीम है ये है, तो स्कीम में अगर मर्जर इंक्लूडेड है तो उसके प्रोविजन, दीज आर द प्रोविजंस विच आर गिवन हियर इन सेक्शन 232। ठीक है। तो क्या कहता है? दैट द compromise or arrangement has been proposed for the purposes of or in connection with the scheme for the reconstruction of the company or companies involving merger or amalgamation of any two or more companies, and that under the scheme the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any company hereinafter referred to as the transferor company is required to be transferred to another company। ठीक है। Or is proposed to be divided among and transferred to two or more companies. The tribunal may, on such application, order a meeting of the creditors or class of creditors or the member of class of members, as the case may be, to be called, held and conducted in such manner। ठीक है। तो वो ये कहता है कि उस केस में इनकी भी जो क्रेडिटर्स है या क्लास ऑफ क्रेडिटर है या मेंबर ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर, उनकी भी मीटिंग बुला ली जाएगी और सेक्शन 230 वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे, मुटेटिस मुटेटिस। ठीक है। वही अपना नोटिस वगैरह। वेयर एन ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द टर्मिनल अंडर सबसेक्शन 1 मर्जिंग कंपनीज और द कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए डिवीजन इज प्रपोज्ड shall also be required to circulate the following for the meeting so ordered by the tribunal, namely the draft of the proposed terms of the scheme drawn up and adopted by the directors of the merging company, confirmation that a copy of the draft scheme has been filed with the registrar, a report adopted by the directors of the merging companies explaining effect of compromise or arrangement, a report of the expert with regard to valuation, supplementary accounting statement. The tribunal, after satisfying itself that the procedure specified in subsection 1 and 2 has been complied with, may by order sanction the compromise or scheme। ये एक इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर फीस दे रखी है ना, तो वो सेटअप हो सकती है, इसके ऊपर सवाल पूछ लेता है। वेयर द ट्रांसफरर कंपनी इज डिसॉल्व्ड, द फीस इफ एनी पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी फीस पेएबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी ऑन इट्स ऑथराइज्ड कैपिटल सब्सिक्वेंट टू द एवेल्यूएशन। ठीक है। एंड सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स हैज बीन डीम्ड नेसेसरी। क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएगा इसमें वो। मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी 234, ये क्या होता है?
The provisions of this chapter, unless otherwise provided under any law, shall apply mutatis mutandis to the scheme of merger and acquisition between companies registered under this act and companies incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified. ठीक है. Central government may make rules in consultation with RBI. Subject to the provisions of any other law, a foreign company may with the prior approval of the Reserve Bank of India. ठीक है. तो अगर फॉरेन कंपनी का मर्जर करना है तो उसके केस में क्या होगा कि प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का. ठीक है. मर्ज इनटू ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और वाइस वर्सा. And the terms and conditions of the scheme of merger may provide, among other things, for the payment of consideration to the shareholders of the merging company in cash or in depository receipts, or partly in cash and partly in depository receipts. ठीक है. ये भी एक इंपॉर्टेंट है. एंड एक्सप्रेशन फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेदर हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट. ठीक है. तो इतना तो कम से कम हमें पढ़ लेना चाहिए. आरबीआई तो याद रखना है कम से कम, और नहीं तो. ये भी इंपॉर्टेंट है. 235 क्या कहता है? पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम. डिसेंटिंग हमने बोल दिया कितना? 10th. ठीक है. 10% और मोर, नॉट लेस देन 10% मिनिमम होना चाहिए. वेर ए स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और क्लास ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी has within 4 months after making of an offer in that behalf by the transferring company been approved by the holders of not less than 9/10 in value of the shares whose transfer is involved. ये स्कीम में अप्रूवल कितना हो गया? नॉट लेस देन 9/10 इन वैल्यू, other than shares already held at the date of the offer by or by a nominee of the transferee company or its subsidiary companies. The transferee company may at any time within 2 months after the expiry of the said 4 months give notice in the prescribed manner to any dissenting shareholders that it desires to acquire its shares. ठीक है. 9/10 एग्री है तो बाकियों को क्या करेंगे? उनको नोटिस दे देंगे कि भाई आपके शेयर्स हम एक्वायर करना चाहते हैं. Where a notice under subsection 1 is given, the transferee company shall, unless on an application made by the dissenting shareholders to the tribunal. ठीक है. भाई दो सिचुएशन हो सकती है. आइदर दे हैव ऑलरेडी मेड एन एप्लीकेशन टू दी ट्राइब्यूनल. अगर एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस वॉज गिवन एंड द ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट टू ऑर्डर अदरवाइज be entitled to and bound to acquire those shares on the terms on which under the scheme or contract the shares of the approving shareholders are to be transferred to the transferring company. ठीक है. मतलब ये क्या है? बेसिकली स्कीम अप्रूव हो गई, उसके बाद में कोई निकलना चाहते हैं उस कंपनी से. ठीक है. भाई कंपनी ए और कंपनी बी मर्ज हो गई आपस में. अब कुछ शेयर होल्डर उस कंपनी में से निकलना चाहते हैं तो उनके ऑफर की बात कर रहे हैं. ठीक है. स्कीम ऑलरेडी अप्रूव्ड है. वेर ए नोटिस हैज बीन गिवन बाय द ट्रांसफरी कंपनी and the terminal has not, on an application made by the dissenting shareholder, made an order to the contrary, the transferee company shall, on the expiry of 1 month from the date on which the notice has been given, or if an application to the terminal is then pending, after that application has been disposed of, send a copy of the notice to the transferor company together with an instrument of transfer to be executed on behalf of the shareholder by any person appointed by the transferor company. ठीक. चलिए. डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर इंक्लूड्स ए शेयर होल्डर हु हैज नॉट असेंटेड टू द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट and any shareholder who has failed or refused to transfer his shares to the transferring company in accordance with the scheme or purchase of minority shareholding. यहां पर क्या है? 90% आर एग्री. ठीक है. भाई जो भी एमेलगमेशन है या शेयर एक्सचेंज है तो फिर वो बाकी को कहेंगे कि भाई वी वांट टू एक्वायर योर शेयर्स. The acquired person or group of persons shall offer to the minority shareholders for buying the equity shares held by such shareholders at a price determined on the basis of valuation. तो वैल्यूएशन के हिसाब से परचेज कर लेंगे उनके शेयर्स.
एक मिनट, बहुत सारी फाइल खुल जाती है नहीं। एक मिनट, यहाँ से खोलते हैं, फोल्डर में से हो। केस स्टडी देख लेता हूँ, केस स्टडी होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ नेम, वाइंडिंग अप। अब एक ये केस स्टडी देखते हैं। ये तो शायद कर भी ली थी, मेरे को लग रहा है। मैं देखता हूँ। ये तो केस स्टडी कर ली थी हेमंत गुप्ता जी हमने, नहीं? एक सेकंड सर। नहीं सर। नहीं करी, ओके। नहीं सर। तो एक बार ये केस स्टडी देखते हैं, ठीक है। होता क्या है, समटाइम्स द नेम ऑफ द कंपनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो द क्वेश्चन हियर इज वेदर इट कैन बी reinstated. The answer is yes, within a period of 20 years. So Ramlal is the director of XYZ Limited. He receives a notice because what happens is, suppose you wind up a company, ठीक है। भाई कंपनी हैज बीन वाइंड अप, मान लीजिए इफ इट इज बीइंग रन फ्रॉम रेंटेड प्रीमिसेस, यू विल वैकेट द प्रीमिसेस आल्सो। अगर नोटिस भी कोई हाँ। जाएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। हाँ तो जी। वो फिर क्या होता है, डायरेक्टर के एड्रेस पर भेजते हैं नोटिस। डायरेक्टर का तो कोई एड्रेस होगा ना, उसका पैन नंबर ढूंढते हैं सिन नंबर से। सो रामलाल इन दिस केस, ही इज द डायरेक्टर, ही हैज रिसीव्ड ए नोटिस ऑफ डिमांड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गुवाहाटी, रेजिंग ए डिमांड ऑफ 20 lakhs ऑन XYZ लिमिटेड, ठीक है, whose name is already struck off from the register of companies 3 years ago in 2019. Office of the company was running from rented premises which had been vacated long. So that is the reason perhaps Ramlal did not come to note of the notice for striking. Ramlal had even discontinued to operate his email ID because his account was hacked. Now Ramlal approaches his neighbor, a chartered accountant, for guidance in this regard. So now let us try to answer these questions. First is, can income tax department get the name of the company restored? Suppose there is a demand from income tax department or GST department. The name has already been struck out. So whether the name of the company can be restored यस and सर, how? इट कैन बी। The answer is, so it says कि a petition may be presented to the jurisdiction having the रजिस्टर्ड jurisdiction over ऑफिस। the registered office of the company, ठीक है। अब ये जो कंपनी थी, ये थी दिल्ली की, तो इनमें एनसीएलटी दिल्ली को अप्रोच चलिए। करना पड़ेगा। तो द नेम में बी रिस्टोर्ड वेर एवर कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, ठीक है। Now, will Ramlal get the opportunity of being heard in case the petition is admitted by the NCLT? The answer is yes. यस। I know he will get an opportunity of being heard. So, if the name is being restored, so then the uh, person will get the opportunity of being heard. XYZ Limited was a listed company till 2015. However, since it did not pay the listing fees, it was delisted. So, is the action of the registrar valid in view of these facts?
So actually, there are rules which govern the removal of name of the companies. So if we read section 248(1), so let us read section 248(1). एक बार 248(1) पढ़ लेते हैं। तो 248(1) को जब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ नेम्स, तो उस केस में देखते हैं कि क्या रूल्स है। दिस इज गवर्न बाय चैप्टर 18, रिमूवल ऑफ नेम्स। तो 248, ये 248 है। एक मिनट, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो दिस इज 248, where the registrar has reasonable cause to believe that a company has failed to commence its business within 1 year of its incorporation, or a company is not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years, and has not made any application for obtaining the status of a dormant company. He shall send a notice to the company and all the directors of his intention to remove the name of the company from the register of companies, and request them to send their representations within a period of 30 days from the date of the notice. ठीक है? The subscribers have not paid the subscription money. The company is not carrying on any business or operations. So actually there are rules on which the notice may be given. Suppose reason is something else apart from the above, then the registrar cannot remove the name under this section. ठीक है? So in this case, the registrar cannot remove the name of the company because there are grounds which are specified. उसी grounds पर ही removal हो सकता है इस section में. Now let us see some of the provisions regarding winding up. So Shyam Lal has been appointed as the liquidator in case of ZYX Limited. So during winding up, there are certain rules that, like in case of liquidation also, you have to carry out the liquidation for the purpose of beneficial winding up. Similarly, here also, section 290, subsection 1, if you read regarding winding up of companies, so it says the company can continue to carry on its business, but the purpose should be beneficial winding up. Okay? If you want to expand further, it is not allowed. So in this case, Shyamlal wants to raise loan from PNB for further expansion. So this is not permitted during liquidation. Only for the purpose of beneficial winding up, you can take actions. Like in case of liquidation, similarly, company liquidator is also required to submit quarterly report to the tribunal. And ये की तो नहीं ना केस स्टडी हमने? नहीं सर। हाँ, an immovable property belonging to the company was transferred to a relative of the director. Like in case of liquidation also, in case of CIRP, there are provisions regarding look back period, है कि ना? Preferential, undervalued, हाँ वो जी। सब provisions हैं। यहाँ पर भी similar provisions हैं। तो सेक्शन 329 इसको गवर्न करता है। तो सेक्शन 329 क्या बोलता है? 329 बोलता है कि बेसिकली हमारा क्या पीरियड है इसके अंदर? 24 मंथ्स। ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि इफ ए ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू 24 मंथ्स बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, सो देन इट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है? इफ इट इज डन इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। सेक्शन 329 हम पढ़ सकते हैं एक बारी। सेक्शन 329 अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 329 हमारा क्या बोलता है, मैं पढ़ देता हूँ, एक्ट भी है मेरे पास।
सेक्शन 329 बोलता है एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड बाय ए कंपनी नॉट बीइंग ए ट्रांसफर और डिलीवरी or in favor of a purchaser or an encumbrancer in good faith and for valuable consideration if made within a period of 1 year before the presentation of a petition for winding up shall be void. ठीक है, वो ये कहता है कि अगर 1 ईयर के अंदर की है तो इट शैल बी वॉइड. ठीक है, और यहां पर कितने दिन में की है, ये 18 मंथ्स 18 मंथ। में, तो इसीलिए दिस इज नॉट वॉइड. तो यहां पर लुक बैक पीरियड जो है वो 1 ईयर है, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर. बढ़िया। श्यामलाल फाइंड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पे भी लिक्विडेशन में भी वी हैव गॉट सिमिलर प्रोविजंस, है ना भाई. वहां पर क्या है कि यू हैव टू गेट देम कंप्लीटेड. सो श्यामलाल फाइंड्स दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय जेड बाय एक्स आर नॉट प्रॉपर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 2 years immediately preceding the commencement of the winding up. Directors raised the plea that income tax had sealed their premises and their staff had left them. So basically there is a provision in section 338. section 338 क्या बोलता है, सेक्शन 338 हमारा बोलता है कि लाइबिलिटी वेयर प्रॉपर बुक्स आर नॉट केप्ट, वेयर प्रॉपर अकाउंट्स आर नॉट केप्ट. सो प्रॉपर और डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. तो उस केस में पनिशमेंट है नॉट लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज. Shyamlal comes across on the invoices, on the letterhead, on every document. When a company is being wound up, you have to give this indication. 344 इसको govern करता है. 344 बोलता है statement that the company is in liquidation. So where a company is being wound up, whether by the tribunal or voluntarily, every invoice, order for goods or business letter issued by or on behalf of the company, ठीक है, being a document on or in which the name of the company appears shall contain a statement that the company is being wound up. ठीक है, तो अगर ये नहीं करते तो उस केस में फाइन है नॉट लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज. ठीक है, अच्छा, दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस कंपनीज एक्ट. ये इसको देख लीजिएगा एक बार CSR में. ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने बना रखा है, तो यू कैन गो थ्रू दिस एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द रिकॉर्डिंग ऑन दिस. अब थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं, एक बार आप कंपनी से खोल लीजिए, मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कुछ. ठीक है, पर्टिकुलरली जो अमेंडमेंट्स अभी अभी हुई हैं. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं बिकॉज समटाइम्स दे आस्क द क्वेश्चंस आउट ऑफ रीसेंट अमेंडमेंट्स. सेक्शन 62, सेक्शन 62 है इन केस ऑफ राइट्स इशू. सेक्शन 62 एक बार खोलते हैं. मैं एक बार ना इस पे सेक्शन 62, सेक्शन 62 आपका आ जाएगा राइट्स इशू. तो राइट्स इशू आपके आ जाएंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में आ जाएंगे मेरे हिसाब से. चैप्टर 4 में आ जाना चाहिए. हम्म, तो 62 में क्या अमेंडमेंट हुआ, 62 में अमेंडमेंट हुआ कि रिडक्शन इन टाइमलाइंस फॉर राइट्स इशू टू इवन लेस देन 15 days. ठीक है,
तो दिस प्रोविजन इज नोटिफाइड एंड इफेक्टिव फ्रॉम 22 जनवरी 2021। तो एक बार ये देख लेते हैं। ये देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, where at any time a company having a share capital proposes to increase its subscribed capital by the issue of further shares, such shares shall be offered to a person who at the date of the offer are holding equity shares in proportion as nearly to the circumstances, ठीक है, to the paid up share capital on those shares by sending a letter of offer subject to the following condition। बेसिकली राइट्स इशू की बात कर रहे हैं। The offer shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than 15 days, ठीक है, और such lesser number of days as may be prescribed, ठीक है। तो 15 डेज से भी कम का भी नोटिस हो सकता है, मतलब ये है, ठीक है। एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑफर विद इन विच द ऑफर इफ नॉट एक्सेप्टेड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन declined। So there is a reduction. Basically, the point here to note is that there is a reduction in timeline for rights issue। मतलब even less than 15 days notice may be given। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 21 में हुई है। उसके बाद में सेक्शन 135 में एक अमेंडमेंट हुई। इसमें क्या बोला, रिलैक्सेशन इन CSR प्रोविजंस। 135 इसमें होना चाहिए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। इसमें CSR में भी क्या हुआ कि देर इज डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस। सो 135 में क्या अमेंडमेंट हुआ, 135 में जो अमेंडमेंट हुआ, ये हुआ आपका कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इज परमिटेड। तो रिलैक्सेशन इन CSR प्रोविजंस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ परमिटेड, पनिशमेंट कन्वर्टेड इनटू पेनल्टी। ये यहां पर ये रूल्स में आ गया। यहाँ क्या बोलता है, बिकॉज देर इज अ कैप ऑन स्पेंडिंग, ठीक है। Provided also that if the company spends an amount in excess of the requirements provided under this subsection, such company may set off such excess amount against the requirement to spend under this subsection for such a number of succeeding financial years and in such manner as may be prescribed। ये तो सेट ऑफ इसमें अलाउड है। The excess amount available for set off shall not include the surplus arising out of the CSR activities। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट बाय ए कंपनी अंडर सबसेक्शन 5 डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज।
The requirement under subsection 1 for constitution of the CSR committee shall not be applicable, and the functions of such committee shall in such cases be discharged by the board of directors. ये CSR कमेटी के प्रोविजंस है। ऑन CSR समटाइम्स दे आस्क यू द क्वेश्चन, ये तो मैंने कवर किया ही था मेरे ख्याल। नेटवर्थ इज 500 crores और मोर, टर्नओवर इज 1000 crores और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 crores और मोर ड्यूरिंग immediately preceding financial year. So CSR committee has to be formed consisting of 3 or more directors, and at least one director shall be an independent director. लेकिन अगर स्पेंडिंग आपकी 50 lakhs से कम है तो उस केस में क्या होगा कि नो जरूरत। सेपरेट कमेटी नीड बी फॉर्म्ड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो कर सकते हैं। स्पेंडिंग इज एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड, और इसमें भी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इज परमिटेड। ठीक है। हम्म। ये सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, अगर आप इसको देख लेंगे ना तो क्लैरिटी आ जाएगी का। कौन सी वाली सर, ये बड़ी वाली छोटी वाली प्रेजेंटेशन? ये मैंने मिक्स कर दी इसके अंदर, मैंने इसमें केस स्टडी भी डाल दी। छोटी वाली है ये, छोटी वाली में ही अच्छा। केस स्टडीज भी डाल दी। हम 500 पेज इतना तो वाली थी। जरूर पढ़ लेना आप। हाँ जी। इस पे डेट लिख रखी है मैंने, 7 मार्च। ये सिर्फ वो जो 4 नंबर का है ना, प्लस केस स्टडीज है इसमें, हाँ जी। और ज्यादातर इसी में से आ जाता है। केस स्टडी ना नॉर्मली इसी में से आ रही है। सारी नवी पढ़ पाओ, जितनी पढ़ पाओगे उतना अच्छा है। मोटा मोटा भी देख लोगे तो आइडिया हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया, वो जो छोटी वाली पीपीटी थी ना, उसी के अंदर हाँ ही जी। केस स्टडीज डाल दी। ओके सर। अब जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है ये। पार्टनरशिप में क्या कहता है बेसिकली, तो सबसे पहले तो हमें कुछ मेन प्रोविजंस देख लेने हैं। एक तो ये है कि सपोज समथिंग इज नथिंग इज रिटर्न इन दी पार्टनरशिप डीड। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर होंगे। ठीक है। तो अगर जी। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तब वो क्या इस तरह से सवाल नहीं बनाएगा, वो बनाएगा ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ठीक है। ए हैज कंट्रीब्यूटेड 20 lakhs and B has contributed 5 lakhs. So what shall be their profit sharing ratio? There is no indication in the partnership deed. तो क्या आंसर होगा? A has contributed सर 20 ऑन lakhs, द B has contributed 5 lakhs. Regarding profit sharing सर इन ratio, द partnership deed is silent. इन द रेशो जिसमें उन्होंने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। नहीं, यही तो बात है। Profits and losses are to be shared equally, इक्वली। irrespective of their capital contribution. अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया तो बात अलग है। ठीक है। देखिए, ऐसा है, देर आर सर्टेन रूल्स, जो कि अगर इफ नथिंग इज फाउंड इन दी पार्टनरशिप डीड। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए हैज कंट्रीब्यूटेड 20 lakhs, बी हैज कंट्रीब्यूटेड 5 lakhs, बट देर इज नो मेंशन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दी पार्टनरशिप डीड। देन इन व्हाट रेशियो दे विल बी शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स? सो दे विल बी शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये है। Interest on capital, if nothing is written, then no interest on capital is to be paid. ठीक है। Even if there is a provision in the partnership deed to pay interest on capital, it is paid only when there is a profit. ठीक है। अगर लॉस है तो फिर it is not allowed. जी सर। Interest on capital is never paid if the firm is incurring loss, even though it is permissible in the partnership deed. ठीक है। If the profit is inadequate to pay interest on capital, it will be paid to the extent of profit in the ratio of interest
ड्यू टू दी पार्टनर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ देयर इज अ लॉस। ठीक है, अगर लोन है तो लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, लेकिन अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है आप। ठीक है, दोनों में फर्क है ना। हाँ जी। अगर प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। नोटिस दे। हाँ, सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर, नो सैलरी और कमीशन इज पेड फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस टू एनी पार्टनर। Admission of a partner. No new partner can be admitted without the consent of the existing partners. A minor can be admitted with the consent of all the existing partners. And there cannot be a partner between two persons if one of them is a minor. मान लो ए और बी दो ही हैं सिर्फ, ठीक है, तो क्या होगा? अगर बी माइनर है तो देर कैनॉट बी ए पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी। ये हो सकता है कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स एंड देन सी इज एडमिटेड हु इज ए माइनर। तो माइनर कैन बी एडमिटेड टू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप ओनली। ऐसा नहीं कि दो बंदे पार्टनरशिप कर लें, एक एडल्ट है एक माइनर है, दैट देयर कैन बी नो सच पार्टनरशिप। ठीक है, और उसकी कंसेंट होनी चाहिए ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। दीज आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, तो इट इज नॉट कंपल्सरी एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, बट देन देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के which are applicable in case your partnership deed is your partnership firm is not registered। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। इट मींस दैट लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म will be met first of all by the partners out of their capital and thereafter out of their personal property। Sleeping partner, in a partnership firm it is not necessary that all the partners remain active. One or more partners may be admitted as sleeping partners. They will contribute their capital for agreed share of profit. However, the profit sharing ratio of all the partners will remain equal in the absence of partnership deed। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो चाहे कोई स्लीपिंग पार्टनर है उसको भी उतना ही मिलेगा शेयर। ठीक है, फॉलोइंग पर्संस कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, ये तो कर लिया हमने। एक्सपल्शन, इसके ऊपर सवाल पूछ लेता है। A partner may not be expelled from a firm by any majority of partners, save in the exercise of good faith or power conferred by contract between the partners. The provisions of subsection 2, 3, and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner। पहली बात तो ये है कि this power cannot be exercised unless in good faith। good faith में होनी चाहिए। How do you expel your partner in a partnership? The test of good faith as required for expulsion। ठीक है, इसमें क्या तीन एस्पेक्ट्स है। पहला, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ऐसा नहीं कि आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं उसको हटा रहा है, नहीं ऐसा नहीं। द पार्टनर दैट इज टू बी एक्सपेल्ड मस्ट बी सर्व्ड विद अ नोटिस, उसको नोटिस देना पड़ेगा। द पार्टनर हैज टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, दस ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड ओनली व्हेन बिलो थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। Expulsion of the partner is necessary in the interest of the partnership. The power to expel should be exercised by majority of partners. It should be exercised in absolute good faith in the interest of the firm. Notice is served to the expelled partner and an opportunity of being heard is given to the expelled partner। तभी आप expel उसको कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन कैरमिकल वर्सेस इवांस, सी वॉज ए पार्टनर इन ए फर्म ऑफ डेपर्स। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, विदाउट टिकट पकड़ा गया वो। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑथराइज्ड एक्सपेल्शन व्हेन ए पार्टनर वॉज गिल्टी ऑफ फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी। सी वॉज गिवन द नोटिस ऑफ एक्सपेल्शन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड इट वॉज हेल्ड दैट द एक्सपेल्शन वॉज जस्टिफाइड so far as his liability for acts done before or after his expulsion are concerned, the expelled partner in the same position as that of a retiring partner। In most cases, a partner can force out another partner only for violating the partnership agreement or state or federal laws। If you did not violate the agreement or act illegally, you may nonetheless be forced out of the partnership if a court determines that the partnership should be dissolved। A partner of an LLP may be removed or expelled as per the LLP agreement। ठीक है, LLP के केस में क्या होगा? If the agreement is silent on this issue, then Schedule 1 would be applicable to the LLP and it says that majority of the partners cannot expel a partner। In other words, consent of all the partners would be required to expel a partner। ठीक है,
फिर जनरल रूल्स क्या है फॉर रिमूवल ऑफ ए पार्टनर? LLP business is carried by mutual understanding and as per LLP agreement. There can be number of valid reasons for removal of partner from the LLP. Generally, LLP agreement have such terms. A few situations where it gives rise to take action for removal of partner are fraud in business, negligence in roles and responsibilities, कोई violation of law हो गया, lack of funding हो गया, bankruptcy या insolvency of general partner, change in scope of work of LLP, retirement or resignation of a partner, breach of financial data, breach of trust, inability to perform obligations as defined in the LLP agreement. In following situations, LLP partner is automatically ceases to act as partner on dissolution of the LLP, on death of the partner, if the partner is declared to be of unsound mind, if the partner is adjudicated as an insolvent or declared as insolvent. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट ए पार्टनरशिप फर्म में हेल्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म टू बी 50। अगर आप ये, और ये बात आप कई बार होता है भाई कहाँ लिखी बात है, तो अगर आप कंपनीज मिसलेनियस रूल्स देखोगे तो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2000 में रूल नंबर 10 है, तो रूल नंबर 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार रूल भी खोल लेता हूँ, आप भी खोल लीजिए। हम्म, 2.320। ये मिल गया आपको, इसका रूल नंबर 10 लिखते हैं। तो रूल नंबर 10 में क्या बोलता है ये? रूल नंबर 10 में बोलता है एसोसिएशन और पार्टनरशिप ऑफ फॉर्म्स एक्सीडिंग सर्टेन नंबर, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 persons फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग एनी बिजनेस that has for its objects the acquisition of gain by the association or partnership or by individual members thereof unless it is registered as a company under the act or is formed under any other law for the time being in force। ठीक है, तो अगर हम कंपनीज मिसलेनियस रूल्स देखते हैं 2014, तो रूल नंबर 10 बोलता है कि आपके पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 members, but according to section 464, अगर हम सेक्शन 464 देखें तो रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 लिखे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 of the Companies Act, a partnership for a banking company must not have more than 10 partners and for other business it must not exceed 20। तो 464 में क्या लिखा है? लेकिन वो रूल नंबर 10 को ले जाता है, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, बट आज की डेट में रूल के हिसाब से 50 है। ठीक है, ये देखते हैं एक बार। एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, Suncare Food Products and Services is a partnership firm engaged in the business of food products and services since 2011, having 14 partners. The firm is not registered under the Partnership Act। ठीक है, the firm is considering the expulsion of the following partners। ठीक है, बहुत सारे पार्टनर बना दिए ताकि अलग अलग सिचुएशन बना दें। Sudha Chandran is alleged to be guilty of fraud into business by corrupting the data related to stocks available with the firm। ठीक है, it has come to the notice of the firm that stock figures are tampered with a view to understate the profit and thereby the partner is guilty of breach of trust to the partners of the firm।
Also, some of the invoices regarding goods purchased have not been recorded in the stock register maintained for the said purpose. The stock quantity underlying into the godown of the firm also do not match with that of the figures as stated in the stock register. तो इसके ऊपर ये एलिगेशन है, तो इस एलिगेशन पे एक्सपेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? रविचंद्रन इज एलेज्ड टू बी गिल्टी ऑफ अनसाउंड माइंड एज ही एंटर्ड इनटू ए क्वारल। ठीक है, तो आप आपका अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ है या अनसाउंड माइंड है तो उस पे भी हो सकता है। और क्या रजिस्टर्ड होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसके आंसर आप एक बार ग्रुप में लिखिएगा। यू राइट द आंसर्स इन द ग्रुप। बेसिकली ग्राउंड्स वी हैव ऑलरेडी सीन, तो अगर उन ग्राउंड्स पे फिट होता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया। ये मैंने साइट पे भी दे रखा है, आईबीसी 2016 में ना आपको पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा। तो इसमें एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में निकाल देता हूँ। ये आपको चैप्टर 5 में मिल जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। ये हमारा सेक्शन 33 है। एक मिनट, ये मैं शेयर करता हूँ। ये नजर आ रहा होगा आपको, है ना? एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर क्या बोलता है ये पार्टनरशिप डीड में से पढ़ रहा हूँ, पार्टनरशिप एक्ट में से। ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए फर्म बाई एनी majority ऑफ पार्टनर्स save in exercise of save in exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners. The provisions of subsection 2, 3 and 4 of section 32 shall apply to an expelled partner as if he were a retired partner. सबसे पहला तो क्या बोलता है कि भाई कितनी भी मेजोरिटी हो वो नहीं रिमूव कर सकते। आपको सबसे पहले तो क्या देखना है? एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ। और उसके बाद में आपको सेक्शन 32 देखना है। सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2, 3 और 4, 2, 3, 4 क्या कहता है ये भी देखते हैं। ये बेसिकली वही कहता है कि पार्ट आपका जो है, इट हैज टू बी, दिस पावर हैज टू बी
exercised in good faith. अच्छा, रिगार्डिंग फॉरेन एलएलपी थोड़ा सा कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं कि वेदर, अब ये बताइए कि वेदर एन इंडियन कप देयर इज एन इंडियन कंपनी एंड ए फॉरेन कंपनी, ठीक है, तो वेदर दोज कंपनीज कैन मर्ज। कंपनी फॉरेन कंपनी कैन मर्ज सर, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल। अच्छा, वेदर एन इंडियन कंपनी एंड फॉरेन एलएलपी कैन मर्ज। हाँ सर। देयर इज ए इंडियन कंपनी एंड देयर इज ए फॉरेन एलएलपी, दे वांट टू मर्ज, वेदर दे कैन डू सो। हाँ जी सर, उसमें ये लिखा था ना अभी जो हमने आज सुबह पढ़ा था कि रजिस्टर्ड एनीवेयर अंडर एनी लॉ। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन एलएलपी, तो मर्जर अलाउड है या नहीं है? सेक्शन 234 देखिए और सेक्शन 232 देखिए, इसके लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। अगर हम सेक्शन 234 देखते हैं पहले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछता है इसमें। 234 बोलता है कि फॉरेन कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन एलएलपी में मर्ज विद ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है, लेकिन इंडियन एलएलपी क्या इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है? द आंसर इज नो। देखिए, दो सवाल है, ठीक है, फॉरेन एलएलपी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है, या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है, लेकिन इंडियन एलएलपी क्या इंडियन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है? आंसर इज नो। पहले एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा, फिर मर्जर अलाउड है। आंसर कहां लिखा है? आंसर लिखा है सेक्शन 232 के अंदर। पहले 234 पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे 232। सेक्शन 234 क्या बोलता है? सेक्शन 234 बोलता है मर्जर और अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी। The provisions of this chapter, unless otherwise provided under any other law, shall apply mutatis mutandis scheme of merger and amalgamation between companies registered under this act and companies incorporated in the jurisdiction of such countries as may be notified. ठीक है? A foreign company may, with the approval of the Reserve Bank of India, merge into a company registered under this act or vice versa. मतलब इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में मर्ज करना चाहती है, फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज करना चाहती है, अलाउड, ठीक है। अब 232 पढ़ते हैं। 232 क्या बोलता है? 232 में आप देखिए, सेक्शन 232 है कि भाई एक तो है इंडियन एलएलपी और एक है इंडियन कंपनी, और वो दोनों मर्ज करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? द आंसर इज नो। मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। क्योंकि 234 में इन्होंने क्या कहा? 234 में स्पेशली कह दिया कि फॉरेन कंपनी का, 232 में ऐसा कुछ नहीं बोला कि इंडियन एलएलपी, उसे 234 में स्पेशली बोल दिया ना, फॉरेन एलएलपी फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज कर सकती है।
मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। इस पे केस लॉ भी है, तो एक बार आप ग्रुप में देख लीजिएगा, इसको डिस्कस कर लीजिएगा। क्या है, इंडियन कंपनी और इंडियन फॉर इंडियन एलएलपी अगर मर्ज करना चाहती हैं तो उसके लिए पहले इंडियन एलएलपी को कंपनी के अंदर मर्ज करना पड़ेगा। मतलब एलएलपी को पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, फिर मर्जर अलाउड है। ठीक है। उसके रीजन भी हैं, वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकता है ना। कुछ गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं एलएलपी की और कंपनी की, तो पहले क्या था, सेम फुटिंग पे लाओ, उसके बाद में मर्ज करो। ठीक। ये मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ इसके बारे में, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। क्या है ये अपना, हाँ, ठीक है जी। तो ये जरा देख लीजिए। और मनु गुप्ता जी, आप बताइए कुछ, एनी सजेशंस, कि आपको क्या लगता है। भाई आपके जब पेपर देना आपने, उससे पहले हम चाहते हैं पूरा कंप्लीट कर लें। और बताइए एनीथिंग इन पर्टिकुलर वी शुड डिस्कस। सर ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। एंड सर, मैं एक चीज़ पूछा था, एक तो ये बिजनेस हाँ लॉज हो गए, एक अलाइड लॉज हो गए। हाँ। तो ये अलाइड लॉज भी पढ़ूँ, ये खाली बिजनेस लॉ देख लूँ इससे प्रेजेंटेशन से? नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा है, मैं ना ऑनलाइन क्लास टेस्ट दे दूंगा इसमें, वो टेस्ट कर लेना कम से कम आप। ठीक है सर। वो टेस्ट में दे दूंगा, कम से कम उतना टेस्ट तो कर ही लेना। अलाइड लॉज का। मतलब ये है कि फोकस आपका बिजनेस लॉस पे होना चाहिए, प्लस केस स्टडीज ऑफ बिजनेस लॉस। नॉर्मली वो पूछता है आजकल, पार्टनरशिप पे पूछ लेता है, या बेलमेंट पे पूछ लेता है, या कंपनी एक्ट में पूछ लेता है। ठीक केस है। स्टडी का दूसरे वे से आना चांस कम है, जो अलाइड ओके। लॉस में। ठीक है सर, तो अलाइड लॉज छोड़ देता हूँ ना? नहीं 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 करो, मतलब कम से कम उसके क्वेश्चन आंसर तो कर ही लो ना। मैं उसमें ऑनलाइन टेस्ट दे अच्छा। दूंगा ना, कम से कम उतना तो कर ही लेना, ठीक है सर। ठीक है। है ना। और उसके अलावा, बस सर यही था, बाकी तो ये पढ़ना ही है अभी सारा। हाँ बाकी केस लॉस कल करते हैं, कल हम केस लॉ करते हैं इसके, चलिए ठीक है जो सर। 60 केस लॉज है ना, हाँ उनको जी। करेंगे कल। ठीक है सर जी, हाँ केस जी। लॉस देख ठीक लेता है। हूँ पहले। इन द मीन टाइम आप लोग ये पढ़ते रहिए, कोई ग्रुप में डिस्कस करते रहिए, कोई केस स्टडी पर्टिकुलर हमें डिस्कस करनी है तो वो कर लेंगे, है ना। या जिसके ठीक आंसर नहीं दे रखे तो उनके आंसर आप दीजिए, ग्रुप में दीजिए या इंडिविजुअली मुझे भेजिए। ठीक है सर। हाँ। तो ये ओके। अलाइड लॉस हाँ। देख